Hello students, we start with the Gauss theorem. Previous class मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और आज फिर हम डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। देखिए, एक हाइपोथेटिकल थ्योरम है और रेगुलर बॉडीज़ का, चार्ज बॉडीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म शेप रिजिड बॉडीज़ का, लाइक लाइन चार्ज का फाइंड कर सकते हैं, स्फीयर का फाइंड कर सकते हैं, शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, या हम सिलेंड्रिकल शेल का या सॉलिड सिलेंडर का फाइंड कर सकते हैं, प्लेन शीट का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, थिन हो या थिक हो। तो इन ऐसे जो यूनिफॉर्म चार्ज रेगुलर शेप बॉडीज़ हैं, इनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, बट इट इज़ हाइपोथेटिकल थ्योरम, ठीक है। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम? तो द स्टेटमेंट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रीवियस क्लास डिस्कस किया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई फॉर अ क्लोज सरफेस। देखिए, ये जो क्लोज सरफेस है, दिस मस्ट बी वॉल्यूमेट्रिक is 1 by epsilon naught times total charge enclosed within the closed surface. So net electric flux phi for a closed surface should be volumetric, is 1 by epsilon naught times epsilon naught we have to take for space, और अगर medium हो तो epsilon of the medium हमें लेना होगा, times total charge enclosed within the closed surface. This closed surface is also called Gaussian surface, right? The statement is phi e is equal to 1 by epsilon naught total charge enclosed within the closed surface. The result is q in by epsilon naught. It is the value of flux. Now for a closed surface we have phi. It is integration of d phi. मैंने क्लोज पाथ या क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन पे सर्कल बताया था, क्लोज पाथ के लिए, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। दैट इज इक्वल टू E dot dA, that is equal to 1 by epsilon naught total charge enclosed within the closed surface, and it is for the space medium. ये space medium के लिए, right? Now we come to the derivation of the Gauss theorem. Gauss theorem का derivation पे आते हैं। Derivation of Gauss theorem. So we consider a point charge Q, and we have a closed surface which is a Gaussian surface, a spherical closed surface. We have a spherical closed surface here. This one is a spherical closed surface. Radius of this sphere is
इसका स्फीयर का रेडियस हमने क्या कंसिडर कर लिया, आर कंसिडर कर लिया, राइट। नाउ वी कंसिडर, यहाँ हमारा फॉर्मूला में क्या है, ई डॉट डी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड इज व्हाट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. तो वी कंसिडर a small surface of the sphere. Its area is suppose dA. तो what about area vector, मैंने previous class में बताया था, area vector is any line perpendicular to the surface directed towards the observer. और ये positive charge है, line of force will be diverging. It is the electric field. Then what is the angle between electric field and area vector? That angle is 0. Theta is 0. So what is left hand side? Left hand side we have E dot D. तो लेफ्ट हैंड साइड से हम रिजल्ट को डिराइव करते हैं, राइट. तो सी E dot dA we have E dA cos 0, क्योंकि अभी एंगल बिटवीन हमने E और dA क्या लिया था, 0 लिया था, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे. दैट इज इक्वल टू व्हाट, ADA. इट इज E dA. E का वैल्यू पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या किया था, इट वाज Q बाई 4 pi r square. If r is the radius of the sphere, integration over the closed surface dA. It implies that flux phi is equal to Q by 4 pi r square. dA was the part of the sphere of radius r. तो इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो we get the total surface area of the sphere, which is what, 4 pi r square. It is also 4 pi epsilon naught r square. एप्सिलॉन मैं लेना भूल गया था, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. द रिजल्ट वी गेट व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इट इज फॉर स्पेस, तो वही हमने लिखा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, राइट. तो हेंस LHS is equal to RHS proved. EDA, integral over the closed surface, which is net flux, that is equal to Q by epsilon naught. Now we come to an alternate method to prove Gauss theorem. वो हमने रेगुलर क्लोज सरफेस लिया था, इट वाज ए स्फीयर. अब हम एक इलिप्सॉइडल शेप का क्लोज सरफेस कंसिडर करते हैं. It is a closed surface with the charge Q inside the closed surface. We consider a small surface dA, area vector, any line perpendicular to the surface, that is called what, area vector, and this distance is suppose R. Electric field radially out, positive charge के लिए, it is the direction of angle between E and dA, that is suppose what, theta. Then integral over the closed surface E dot dA, that is equal to ADA cos theta, right. That is Q by 4 pi epsilon naught r square, integration over the closed surface dA cos theta. What we get, phi is equal to Q by 4 pi epsilon naught integration over the closed surface dA cos theta by
आर स्क्वायर। और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको सॉलिड एंगल बताया था। तो वन कंप्लीट सॉलिड एंगल इज इंटीग्रेशन डी ए cos theta by r square, and its value was what? 4 pi. One complete solid angle is always 4 pi asteradian. Then we get phi is equal to q by 4 pi epsilon naught into 4 pi. Solving we get, hence we have phi, it was what? Integral over the closed surface, that is equal to q by epsilon naught, right? ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया। See, if a closed surface is contained of number of surfaces, then integral over ADA, that is what phi total it is, E dot dA1 for the first surface, then for the second surface, and so on, integral E dot dAn for the nth surface, E1, E2 and so on up to En. If E1 is equal to E2 and so on up to En, in that case phi is equal to integral अच्छा ये it is EDA over the closed surface, that is equal to, कोई भी अकेला सरफेस क्लोज नहीं है इसलिए सर्कल यहाँ कहीं भी यूज नहीं करेंगे, देन इट इज E2, E1 की जगह आपने E लेना है, E2 की जगह भी क्या लेना है? E लेना है, dA2 and so on, we have En dN. ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? That is integral E dA1 cos theta 1 for the first surface, dA2 cos theta 2 for the second surface and so on, cos theta n for the nth surface. जैसे एक डायग्राम हम लेते हैं, सपोज इट इज अ सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस। तो कितने सरफेसेस हैं यहाँ हमारे पास? 3। तो 3 सरफेसेस हैं एंड ऑब्जर्वर इज आउटसाइड द सिलेंडर, हम सब सिलेंडर से बाहर हैं। तो दिस सरफेस इज फ्लैट, तो दिस एरिया वेक्टर इज सपोज dA1। एक कर्व सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर dA2। वन सरफेस इज दिस, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर सरफेस डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सब बाहर हैं। अब सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड is E, angle between E vector and dA1 vector is theta 1। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सपोज यूनिफॉर्म लिया, here also electric field is E, angle between E and dA2 here is theta 2, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E लिया, here angle between E and dA3 is theta 3। तो for this closed surface flux phi is equal to integral EDA over the closed surface, that is equal to E1, E तो यूनिफॉर्म लिया है हमने, तो E1 की जगह आपने E लेना है, इट इज सिंपली E डॉट dA1 फॉर द फर्स्ट सरफेस, देन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA2 फॉर द सेकेंड सरफेस, जैसे E d1 cos theta 1 हो जाएगा, एंड E डॉट dA3 फॉर द थर्ड सरफेस। तो इसको आप क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ
it may be written as integration of EdA1 cos of θ1, राइट। तो अकॉर्डिंगली जो है आगे एप्लीकेशंस में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला phi is equal to Qn by epsilon naught, ठीक है। दिस वन इज फॉर स्पेस। तो आपको एनी हाउ चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो इनक्लोज चार्ज को आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एक्सटर्नल चार्ज को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स फॉर अ चार्ज A outside the closed surface is always 0। जैसे क्लोज सरफेस है, एक चार्ज हमने बाहर लिया, तो इस क्लोज सरफेस के लिए द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी 0। एंड बी, चार्ज ओवर द क्लोज सरफेस। अगर हम किसी चार्ज को क्लोज सरफेस पे ही लेते हैं, देन ऑल्सो द फ्लक्स फॉर दिस क्लोज सरफेस विल बी 0, राइट। एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सी, लेंथ ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। एक कर्व हमारा डिफाइंड है, इसका लेंथ चाहिए टू कोऑर्डिनेट के सिस्टम, टू डाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, लाइक इट इज अ कर्व एंड वी हैव टू गेट द लेंथ फ्रॉम p1 टू p2, p1 टू p2 चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, इस कर्व का एक स्मॉल लेंथ कंसिडर किया। दिस वन इज सपोज व्हाट, dl। this value is dx and what about this value, it is dy। तो now you consider this triangle, इस triangle को आपने consider किया, it is dy and it is dx, it is dx and it is dl। Pythagoras theorem अगर आप यूज करें यहाँ पे, तो we have dl square is equal to dx square plus dy square, then what we get, dl is equal to under root then integration of dl, it will be giving you the total length of the curve, it is equal to under root, हमने dx यहाँ कॉमन ले लिया, तो अगर हम dx को कॉमन ले लेते हैं तो we get the result 1 plus dy by dx square। dx को हमने बाहर ले लिया and this should be integrated from what, x1 to x2। तो this will be giving you the length of the curve from p1 to p2, okay। काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि पार्टिकल अगर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व ट्रेस किया, इट इज y इज इक्वल टू fx, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ के लिए फॉर्मूला है हमारा, ओके। Then students, we try some questions of Gauss theorem and problems based on the formula phi is equal to Qn by epsilon naught only, right। अभी सिर्फ इस पे डिस्कस करेंगे, अभी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस पे हम नहीं जा रहे हैं, पहले क्वेश्चंस जो है इन पे करते हैं। तो यहाँ कुछ मैंने क्लोज सरफेसेस लिया है, दिस आर वॉल्यूमेट्रिक सरफेसेस, और दिस वन इज स्फेरिकल शेल, इसका सेंटर पे हमने चार्ज लिया है Q एंड ये एक रेगुलर शेप्ड वॉल्यूमेट्रिक सरफेस शेल है, इसका सेंटर पे भी चार्ज हमने Q लिया है एंड
इट इज़ ए स्फेरिकल शेल, इसका साइड में हमने चार्ज क्यू लिया है, और ये स्फेरिकल शेल है, इसका बाहर हमने एक चार्ज क्यू लिया है, एंड इट इज़ ए स्फेरिकल शेल जिसका सरफेस पे हमने चार्ज क्यू लिया है। अब इन सब के लिए वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों सर्फेसिस के लिए चार्ज इंक्लोज्ड इज व्हाट, क्यू। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्पेस में है, अगर मीडियम होता तो विल हैव टू टेक क्यू बाई एप्सिलॉन के। तो यहाँ से एक चीज़, अच्छा यहाँ पे एक पार्ट कंफर्म आ गया हमारा कि ये चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, दैट्स वाई फ्लक्स इज जीरो, और ओवर द सरफेस हो उनके लिए भी फ्लक्स क्या होता है, जीरो, ये मैंने अभी डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट, फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो चाहे सेंटर पे हो या साइड में हो, कहीं भी हो, ये इनक्लोज चार्ज का वैल्यू पे डिपेंड करता है, कहाँ पे है इस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस जो है रेगुलर शेप का हो, इरेगुलर शेप का हो, अगर चार्ज इन क्लोज का वैल्यू चेंज नहीं किया तो फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। एंड थर्ड पॉइंट, फ्लक्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिज्म में करेंगे मैग्नेटिक डायपोल, फॉर एनी डायपोल फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। जैसे एक डायपोल हमने कंसिडर किया तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डायपोल का नेट चार्ज इज व्हाट, जीरो, दैट्स वाई फ्लक्स इज जीरो। और एक सिस्टम में चाहे हम कितने भी डायपोल्स क्यों नहीं ले लें, फॉर नंबर ऑफ डायपोल्स ऑल्सो द फ्लक्स विल बी व्हाट, जीरो, चाहे इनफाइनाइट डायपोल ही क्यों नहीं हो। और ये डायपोल्स क्या होने चाहिए, क्लोज्ड सरफेस का अंदर होना चाहिए, फ्लक्स विल बी जीरो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमने लिया, देखिए, वी हैव टू स्फेरिकल शेल्स, वन इज ए एंड द अदर वन इज बी, और चार्जेस कुछ हमने प्लेस किए हैं, ठीक है, इनसाइड द शेल एंड सराउंडिंग में, और ये दोनों का फ्लक्स का रेशियो वी हैव टू गेट, 5a is to 5b वी हैव टू गेट। तो 5a से 5a फ्लक्स फॉर द फर्स्ट, तो से चार्जिंग क्लोज्ड इनसाइड a इज व्हाट, q, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाले चार्ज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। नाउ फॉर b, टोटल चार्ज इज q माइनस q 3q, ये तो b से बाहर है तो इस वाले चार्ज को कंसिडर नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट द चार्ज 3q बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंप्लीफाई करके वी गेट द रिजल्ट 1:3, राइट। कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। फ्लक्स फॉर द हेमिस्फेरिकल सरफेस वी हैव टू गेट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें इसे हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए फाइंड करना है। तो फ्लक्स के लिए पार्ट ऑफ अ क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पार्ट समझ लीजिए। If a closed surface is symmetrical about the given position of charge, एक चार्ज गिवन है उसका अबाउट अगर जो है क्लोज सरफेस जो है क्या है, सिमेट्रिकल है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी पार्ट ऑफ द closed surface is phi for any part of the closed surface, that is q by epsilon naught for the closed surface, area of the part divided by area of the Gaussian surface. See, this area of the part is proportional to angle theta, ठीक है, जो उसने चार्ज पे फॉर्म कर रखा है, इट इज ऑल्सो q by epsilon naught into theta by 2 pi. The area of the part is proportional to angle theta, or this theta should be taken in radian, right? तो इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन लिया, लाइक वी कंसिडर a hemispherical surface, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस का
बेस सेंटर पे हमने एक चार्ज लिया Q एंड वी हैव टू गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस हेमिस्फेयर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस हेमिस्फेयर से एक स्फेयर हमने जनरेट किया, देन फ्लक्स फॉर दिस स्फेयर इज व्हाट, Q by epsilon naught. Now this position of charge means this surface, Gaussian surface, closed surface, spherical surface is symmetrical about the given position of the charge. तो इस हाफ स्फेयर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कंप्लीट एंगल इज 2 पाई, हमें कौन सा एंगल चाहिए, सिर्फ ये वाला। मीन्स हाफ स्फेयर तो जो है कितना एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर पे, इट इज सिंपली पाई। तो फाई पर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द हेमिस्फेयर is what, Q by epsilon naught. Hemisphere is half the area of the sphere and that is also Q by epsilon naught. कितना एंगल फॉर्म कर रखा है इसने, इट इज पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। कैसे भी हम कैलकुलेट करें we get the result Q by 2 epsilon naught. It is Q by 2 epsilon naught, right? So in this sphere सेंटर पे हमने चार्ज Q लिया है। Now we consider any part of this sphere, like we consider only this part of the sphere. We have to consider this part. This part is forming an angle theta at the center. So we come to the unitary method. So means this area is proportional to what, this theta. Then flux for this sphere we have what, Q by epsilon naught, and flux for this part, the defined part, will be what, Q by epsilon naught. Area of the part is proportional to theta, which is in radian, divided by what, 2 pi. That's why we are using this formula. एक और क्वेश्चन लिया हमने, this one is a cone and we have a charge here, यहाँ एक चार्ज लिया। तो what is the flux for this cone? Flux for this cone is Q by epsilon naught. Now we have to get flux for any part of this cone. So about this position, suppose we consider any part of the cone. Suppose we are considering this part of the cone. This charge is Q here. Here charge was given Q. Now suppose this part is forming an angle. Here base angle is 2 pi and this part is forming an angle pi by 3, right? Then what is the flux? Q by epsilon naught for the total cone. Angle is what, pi by 3 we have, divided by 2 pi. The result is what, Q by 6 epsilon, right? Now we come to the next question. This question is from NCERT. See,
This one is a square sheet of given side L, and from the center of the sheet at a height h, this height is given, h is equal to L by 2. We have a charge q. We have to get flux for the, इसका फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम तो हम वॉल्यूमेट्रिक सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, तो इस स्क्वायर को यूज़ करके हम कोई एक गॉसियन सरफेस ट्रेस करते हैं और ये सरफेस इस चार्ज का पोजीशन के अबाउट क्या हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए। तो स्क्वायर को यूज़ करके वी मे इजिली फॉर्म अ क्यूब। तो वी फॉर्म अ क्यूब यूजिंग दिस स्क्वायर। Now, see, what is the flux for this cube? Flux for this cube is q by epsilon naught, and this cube has 6 surfaces. और सॉलिड एंगल अगर हम देखें तो जितने भी सरफेसेस हैं सबके लिए सॉलिड एंगल क्या है, इक्वल है। मीन्स जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस बेस से पास होंगे अदर सरफेसेस से भी उतने ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये जो सरफेस है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो 6 पार्ट का हमारा पास फ्लक्स q by epsilon naught है, देन फ्लक्स फॉर 1 पार्ट विल बी व्हाट, implies that flux for one surface of the cube is 1 by 6 times q by epsilon naught, that is equal to q by 6 epsilon. It is the answer, right? Now we come to one more question. See, a point charge has been kept at the vertex of a cube. A point charge q, suppose, has been kept at the vertex of a cube, and the surfaces are defined, suppose AB, CD, A dash, B dash, C dash and D dash. So we have to get flux for ABCD। देखिए, जिन सरफेसेस का वर्टेक्स पे हमारा चार्ज आ गया उन सरफेसेस के लिए फ्लक्स इज 0। तो फ्लक्स फॉर ABCD का एक वर्टेक्स पे है, फिर फ्लक्स फॉर A, B, B डैश एंड A डैश, इसका सरफेस पे भी जो है इसका सरफेस का वर्टेक्स पे हमारा आ रहा है, और एक ये वाला सरफेस है फ्लक्स फॉर A, D, D डैश, A डैश। इनके लिए फ्लक्स का वैल्यू क्या है, 0, बिकॉज फॉर these surfaces surface area vector is perpendicular to the electric field vector। और जिन सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो सरफेस वेक्टर्स के लिए, उनके लिए फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। अब बचे कितने सरफेसेस, 3। तो ये 3 सरफेसेस का तो 0 हो गया। नाउ वी हैव दिस सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। इनके वर्टेक्स पे जो है हमारा कोई भी चार्ज नहीं है, तब इनके वर्टिसेस पे जो है हम फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ वी हैव टू गेट flux on the over the remaining surfaces not equal to 0। तो हम एक इस तरीके का वॉल्यूमेट्रिक ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं जिसका सेंटर पे चार्ज आ जाए। तो यूजिंग दिस क्यूब वी फॉर्म अ वॉल्यूमेट्रिक ज्योमेट्री। ये हमारा क्यूब है एंड हियर वी हैव चार्ज। यहाँ हमारा चार्ज क्या है, दिस चार्ज इज क्यू। तो इसको यूज करके एक वॉल्यूमेट्रिक ज्योमेट्री हमने फॉर्म किया।
ये देखिए टोटल कितने क्यूब्स हो गए, 4, राइट। नाउ वी हैव दिस 4 क्यूब्स, राइट। और देखिए है ना, दिस 4 क्यूब्स वी हैव। अब ऐसे ही 4 क्यूब्स हम ऊपर ले लें, ये 4 क्यूब्स हमने इस तरीके से ऊपर ले लिए, राइट। इस तरीके से। तो टोटल वी हैव हाउ मेनी क्यूब्स, 8 क्यूब्स। नाउ फ्लक्स फॉर 8 cubes for this system, what is the value of flux? That is equal to q by epsilon, क्योंकि इस ज्योमेट्री का सेंटर पे हमारा चार्ज आ गया है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 1 cube is 1/8 times q by epsilon naught, that is q by 8 epsilon naught, right? And out of 1 cube 3 surfaces have flux 0. So for 3 surfaces of a cube, right? Hence for one surface of the cube, electric flux is equal to 1/3 times q by 8 epsilon naught. It implies that flux for these 3 surfaces, individual surfaces, q by 24 epsilon naught. So flux for the single cube was q by 8 epsilon naught, and flux for the 3 surfaces, each surface, ठीक है, 3 का तो 0 था, तो बचे हुए 3 surfaces का we have what, q by 8 epsilon naught. तो उनमें से एक सिंगल surface का we have the flux value what, q by 24 epsilon naught. That is the answer, right? Come to the next question. ये देखिए, एक हमारा ये क्यूब है, इट इज़ अ क्यूब, और इसका एक सरफेस का, अपर सरफेस का सेंटर पे वी हैव केप्ट अ चार्ज क्यू। नाउ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये, यू हैव टू गेट फ्लक्स फॉर द सरफेस ए बी सी डी। यहाँ सरफेसेस डिफाइंड है, इट इज़ ए बी सी एंड डी। दिस वन इज ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। तो इन सरफेसेस के लिए फ्लक्स जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये कुछ हिंट्स दे रखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल सरफेस है एंड द बेस इज ओपन, और दिस वन इज द हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल शेल एंड द बेस इज ओपन, राइट। एंड इसका बेस सेंटर से r/2 हाइट पे नीचे एक चार्ज रखा है q, रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल शेल इज r. यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फॉर दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स देखें, लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं तो फ्लक्स इज देयर, तो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, फ्लक्स। तो आपको मैंने बताया था, इफ यू कंसीडर अ डिस्क और रिंग, h हाइट पे वी हैव अ चार्ज, h इज इक्वल टू r/2। तो इसके लिए फ्लक्स फाइंड करना बताया था मैंने इस तरीके से, फ्लक्स फॉर दिस सरफेस। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बताया था, इट वाज q/2 epsilon naught 1 minus cos theta
this angle we have what? Theta. Then see Q/2 ε0 फ्लक्स फॉर दिस पार्ट. जो फ्लक्स इसका होगा, जितने लाइंस यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं उतने ही लाइंस इस बेस से भी क्रॉस कर रहे हैं. तो Q/2 ε0 1 माइनस कॉस थीटा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? वी हैव दिस एंगल थीटा, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है. तो बेस इज r/2 बाई हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया. वी गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. राइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. से ये हेमिस्फेरिकल शेल है और क्लोज शेल है. अंदर एक चार्ज रखा हमने Q. तो वी हैव टू गेट द फ्लक्स फॉर द Q shell and also flux for the curved surface. Here we have to get flux for the curved surface suppose. तो देखिए यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स बेस को भी क्रॉस कर रहे हैं और इस कर्व सरफेस को भी क्रॉस कर रहे हैं. तो चार्ज इनक्लोज्ड इज Q. Then what? That's why the total flux is Q/ε0. And what is the value of flux for this plane? तो कितनी हाइट पे? ये r/2 पे. तो वही कॉन्सेप्ट यूज किया हमने. दिस से h हाइट पे वी हैव अ चार्ज Q. तो यहाँ का फ्लक्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला Q/2 ε0 1 माइनस कॉस थीटा. तो वैल्यूज पुट करके हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया. अब हमारे पास दो पार्ट है. वन इज द फ्लक्स फॉर द बेस एंड द अदर वन इज द फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस. दोनों कंबाइन करके वी हैव द रिजल्ट व्हाट? Q/ε0. तो अगर आप टोटल फ्लक्स से इस प्लेन के फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट करते हो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस. इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस. ओके, आप ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो. इट इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क. सिलेंडर है. वी हैव अ चार्ज हियर Q. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज सपोज R. सपोज दिस साइड इज h/3 and this one is 2h/3. radius is R. flux for the curved surface we have to get. तो यहाँ flux hint दे देता हूँ. flux for the curved surface क्या होगा? it will be total flux that is Q/ε0. it is for cylinder minus flux for the upper plane. suppose it is plane 1 and it is plane 2. तो flux for plane P1 minus flux for plane P2. मीन्स अगर टोटल फ्लक्स से आप इन दोनों प्लेन्स के फ्लक्स को रिलीज कर देते हो तो यू विल गेट द फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस. इजी है अब आपके लिए. नेक्स्ट, इट इज अ कोन. इसका वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा है. ठीक है, जस्ट बिलो द वर्टेक्स इनर साइड में जो है चार्ज रखा है. रेडियस R, हाइट h. यू हैव टू गेट द फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस. तो इनर चार्ज अगर है तो इनसाइड फॉर द इंटरनल चार्ज फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? Q/ε0. इट इज द फॉर द कोन. अब इस कोन से अगर इस प्लेन के फ्लक्स को आप रिलीज कर देते हो तो गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. इस तरीके से इनके फ्लक्स भी कैलकुलेट करना है. ये होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन. इट इज फॉर होमवर्क. इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस यू हैव टू गेट अपर प्लेन एंड लोअर प्लेन. ये दोनों फ्लक्स को आप रिलीज कर दो टोटल फ्लक्स से Q/ε0 से, तो आपका फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट कम टू दिस क्वेश्चन. ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा. से we have a cup of tea and it has been filled with tea. Directly constant of the tea is K. यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा Q. This height is h, this height is h. This radius is R and the upper radius is suppose 2R. Right? So you have to get the फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस ऑफ दिस. ऐसा कोल्ड ड्रिंक लिया है मैंने. टी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है. ठीक है ना. तो फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस ऑफ दिस कप यू हैव टू गेट. ठीक है, ये जरूर ट्राई कीजिएगा. सही क्वेश्चन है. अब यहाँ देखें. इट इज अ क्यूब.
एक लीनियर कंडक्टर को हमने पास किया, चार्ज लीनियर कंडक्टर ऑफ सफिशिएंट लेंथ, इट है चार्ज डेंसिटी लैम्डा। पूछा व्हाट इज द फ्लक्स फॉर दिस क्यूब, तो फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना पार्ट इसका जो है इनसाइड द क्यूब है, इट इज साइड ऑफ द क्यूब इज डिफाइंड एल, तो चार्ज इनक्लोज्ड इज लैम्डा एल, तो वी गेट लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, साइड इज एल, वैसे ही ये लीनियर कंडक्टर है ऑफ गिवन लेंथ, तो हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, दिस लेंथ इज √3L, तो चार्ज इनक्लोज्ड इज लैम्डा इंटू √3L बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमिलरली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ लेंथ क्या है, इस तरीके से कंडक्टर क्रॉस कर रहा है, लीनियर कंडक्टर ऑफ चार्ज डेंसिटी सपोज लैम्डा, तो दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L, व्हाट अबाउट दिस लेंथ, ये लेंथ और ये वाला लेंथ, चार्ज इनक्लोज्ड ही तो आपको लेना है, तो ये चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू √2L, तो चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं, और देखिए, इट इज ए स्फीयर डिफाइंड इक्वेशन x² + y² + z² इज इक्वल टू r², और यहाँ से एक कंडक्टर को हम पास कर रहे हैं, द इक्वेशन फॉर द लाइन, जो कंडक्टिंग लाइन है, इसके लिए इक्वेशन चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, इट इज डिफाइंड √3x, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू, तो यू हैव टू गेट व्हाट, द चार्ज इनक्लोज्ड। आप ये लेंथ कैलकुलेट कर लोगे, और लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यू मे गेट द रेडियस। तो ये दो इक्वेशंस हैं, अगर ये प्लेन का आप इक्वेशन लेंगे तो इट इज व्हाट, x² + y² इज इक्वल टू i², and the other equation is y is equal to √3x. Solve these equations, so you'll get the value of what, this length. यहाँ हमारे पास coordinate आ गया, it is x1 and y1, and this coordinate is what, x2 and y2. तो इन दोनों equations को solve करने के बाद, तो using 1 and 2 we get x1 y1 and x2 y2, और ये जब कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ आने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से आप लेंथ कैलकुलेट करो, और चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई करने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सी दिस वन इज ए स्फीयर, इट इज अ क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ SCV। एक स्फेरिकल सेल है, इससे एक रिंग को हम पास कर रहे हैं, एंड दिस रिंग हैज अ गिवन चार्ज, सपोज चार्ज ऑफ द रिंग इज गिवन Q, और दोनों का सेंटर्स, कर्वेचर दोनों का एक दूसरे के सेंटर्स से पास कर रहा है, तो यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, द फ्लक्स। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गेट द चार्ज ऑफ दिस पार्ट ओनली, ये वाले पार्ट का चार्ज कैलकुलेट करना है, तो गेट द चार्ज, और चार्ज कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट। अब यही क्वेश्चन सिमिलर यहाँ है, दिस वन इज ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, और यहाँ पे ये डिस्क लिया है हमने, डिस्क, इट इज अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना, एंड दोनों का सेंटर्स एक दूसरे के कर्वेचर से पास कर रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू हैव टू गेट दिस चार्ज, एनी हाउ ये चार्ज कैलकुलेट करें, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। द सिमिलर क्वेश्चन इज फॉर स्फीयर। देखिए, ये हमारा स्फेरिकल शेल है, दिस वन इज द स्फेरिकल शेल, एंड दिस वन इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी रो, इसका चार्ज डिफाइंड है रो। अब ये पार्ट जो है, अब दोनों का सेंटर्स जो है C1, इट इज द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड इट इज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है, दोनों का कर्वेचर एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो एनी हाउ यू गेट द चार्ज, चार्ज डेंसिटी के टर्म में आएगा। ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ एन्युलर स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1, यहाँ रेडियस r2 है, एंड here रेडियस इज व्हाट, r3, एंड चार्ज inside the annular sphere is what, Q. This inner radius is given A and the outer radius is given B, right? Then you have to get the value of flux for
this surface, inner surface. So charge enclosed is what? 0. That's why the flux will be 0. Then you have to get the value of flux for this spherical part. तो आपको कौन सा चार्ज लेना होगा? You will have to calculate this charge by epsilon naught, and then for flux for a spherical shell passing through point P3, ये आपको कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा see, we have a spherical shell. An equation of the shell is defined. It is suppose x square plus y square plus z square is equal to r square, and we have a curve y is equal to 2x cube which is passing through this sphere, and charge density is defined. Charge density of this conductor is lambda. ठीक है, linear curve का charge density is defined. So you have to get the value of flux for this spherical shell. ठीक है, this one is the question of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का बाद जो है मैं करवाऊंगा आपको. Now we come to the next part, how to get the field intensity using Gauss theorem. That is the application of Gauss theorem. See, it is the steps to find electric field intensity using Gauss theorem. फर्स्ट स्टेप, रटने का जरूरत नहीं, आप स्टेप्स को फॉलो करोगे, है ना. तो फर्स्टली यू ड्रॉ a Gaussian surface passing through the point P, where field intensity has to be. तो जिस भी पॉइंट पे आपको फील्ड इंटेंसिटी चाहिए उस पॉइंट से हमेशा गॉसियन सरफेस पास करेंगे आप. एंड गॉसियन सरफेस GSE, सपोज गॉसियन सरफेस वुड बी सिमिलर टू द चार्ज बॉडी जैसा ही होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. इट मस्ट बी वॉल्यूमेट्रिक. ठीक है, तो जैसे मैं एक लिया पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज बॉडी. तो पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज बॉडीज के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा इट विल बी स्फेरिकल. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इट इज अ सॉलिड स्फीयर, चार्ज स्फीयर, एंड वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. तो यू मस्ट ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी जहां भी फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होगा. तो जैसा चार्ज बॉडी हो वैसा ही गॉसियन सरफेस भी हो जाएगा. अगर हमारे पास लीनियर चार्ज बॉडी है और सिलिंड्रिकल चार्ज बॉडी है तो इसका सिमिलर गॉसियन सरफेस कैसा होगा? द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिलिंड्रिकल. जैसे लीनियर चार्ज कंडक्टर है, वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. तो यू ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P where field intensity has to be determined. The Gaussian surface is what? Cylindrical. Now for a charge शीट अगर लेते हैं
तो इसके लिए गॉसियन सरफेस, प्लेन है तो प्लेन का सामने प्लेन होना चाहिए, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस आप दोनों ही तरीके का ले सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं और क्यूबॉइडल भी ले सकते हैं। लाइक इट इज़ अ थिन चार्ज शीट, ये प्लेन है, वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो प्लेन है तो प्लेन का सामने क्या होगा, प्लेन होगा, तो इट इज द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस इज सिलिंड्रिकल हियर, राइट। तो जैसा चार्ज सरफेस हो वैसा ही हमारा गॉसियन सरफेस होगा। तो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड टोटल चार्ज enclosed within the गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आपको फाइंड कर लेना है, जो बाहर चार्ज है सरफेस पे वो कंसिडर नहीं करना है, यू हैव टू गेट द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, फाइंड टोटल चार्ज enclosed विद इन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इट इज, सॉरी। एंड एक चीज ध्यान रखना है, चार्ज आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो और चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी हो सकता है, तो चार्ज में बी इन टर्म्स ऑफ द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेप, फाइनली यूज Gauss theorem to get इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आप गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना है, और पहले मैं एकेडमिक्स के ही एप्लीकेशंस करवाऊंगा और साइमल्टेनियसली जो है फिर क्लास ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उसमें यूरोडोप के भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये गॉसियन सरफेस का लेक्चर जो है, हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो ऑन बोर्ड लेक्चर वो यूट्यूब में है, क्वांटेम जेई एकेडमी में जो है सर्च कीजिए, तो आप वहाँ से भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पे आएंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज्ड बॉडीज। थैंक यू।